مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹیم ممکن ہے کہ بہار میں پرویش کر جائے، ممکن ہے کہ سیمانچل میں پرویش کر جائے۔ اگر آپ نے اس پر پہرا نہیں بٹھایا تو آپ کے بچے جو آج تقریر نہیں سن رہے ہیں اور آج صرف وہ نعت سننا چاہتے ہیں، اور نعت وہ بھی جو گانے بجانے کے انداز پہ ہو، اس کو وہ سنتے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے، منہ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، نعت سننا بھی نہیں ہے بلکہ ایک تماشے کی طرح ایسے موبائل میں صرف ریکارڈ کرنا ہے اور تو صبح ہونے کے بعد کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ جو جنتی محفل کی رحمت کے فرشتوں کی آمد یہاں ہوتی ہے اور پوری محفل پہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کو ہم نے ایک ڈرامہ کی محفل بنا دیا۔ اگر یہی بات تھوڑی اور شدت کے ساتھ آگے بڑھی تو بولے گا مولانا تیری بات سننے میں مزہ نہیں آتا، جاؤ تم آؤ۔ پہلے تو شاعروں کو بہائے گا، پھر اس کی بھی نعت سنتے سنتے بولے گا نہیں تیری نعت سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ دف والا اور آئے کوئی ایسا میوزک کی آواز لگائے اور پھر اس کو بلائے گا، اور پھر اس کو مزہ نہیں آئے گا تو بولے گا کہ سیک چلی کو بلاؤ، چونکہ سنتے سنتے تھک گئے اور سیک چلی کو بلا لو۔ دھیرے دھیرے اسی طرح سے کیا ہوگا، وہ افراتفری کا ماحول ہوگا، مدرسہ ختم ہو جائے گا، مسجدیں اجڑ جائیں گی، جلسے بند ہو جائیں گے۔ لیکن معلوم ہے جب تک یہ علماء موجود ہیں اور جب تک حق بولنے والا موجود ہے، الحمدللہ موتی نبی نہیں آئے گا۔ 50-100 سال پہلے آلارودل کی کہانی ہوتی تھی کھاڑی میں، 50-100 سال پہلے اکبر بربل کی کہانی سنی جاتی تھی کھاڑی میں۔ کھاڑی کا مطلب گاؤں دیہات اکثر جگہوں پہ آلارودل کی کہانی سنی جاتی تھی، وہاں اکبر بربل کی کہانی سنی جاتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا 40 سال پہلے کہ رات میں لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ایک آدمی ڈھول بجاتا تھا اور کہتا تھا ایک راجا تھا ایک رانی تھی، اور ڈھول بجاتا تھا گاتا تھا، سارے لوگ سنتے تھے۔ یہ کہانی دیہات میں ہوتی تھی، لیکن آج الحمدللہ پورے دیار میں کہیں وہ محفل نہیں ملے گی جہاں آلارودل کی کہانی ہو۔ کیوں؟ ان علماء کرام نے چیخ چلا کر کے ان تمام غلط رسموں کا خاتمہ کروایا، اس کی جگہ پہ چہلوں کی محفل قائم ہوئی، تیجا کا جلسہ قائم کروایا، آخری شریف کے جلوس قائم کروایا، سیرت کے جلسے قائم کروایا۔ یہ جلسوں کا محفل میلاد کا چلنا شروع ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ خرافات کا خاتمہ ہوا، آج سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، آج محفل نعت بج رہی ہے، آج تقویٰ اور نصیحت کی محفل ہو رہی ہے۔ یہ احسان ان علماء کا ہے۔ یہ بتا دیں کہ سکھ کے گھر میں اگر آپ کبھی داخل ہو جائے تو سکھ کے گھر میں گھسیں گے، اس کے ٹیبل پہ شراب کی بوتل سجی رہتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو کبھی آپ پنجاب وغیرہ میں جائیں گے آپ دیکھ لیں گے، راستہ چلتے آپ دیکھیں گے سکھوں کی بیگ میں شراب کی بوتل رہتی، بوتل نکالا اور پینا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بتائیں آپ 50-100 مسلمان کے گاؤں میں آپ گئے ہوں گے، 1000 مسلمانوں میں بدعملی ہے، اس کے باوجود یہ بتا دیں کسی پردھان، کسی مکھیا، کسی سانسد، کسی ودھایک جو مسلمان ہے اس کے گھر میں جانے کے بعد کہ آپ نے شراب کی بوتل دیکھی وہاں کہ ٹیبل پہ شراب کی بوتل سجا کے رکھتا ہو؟ ہاں وہ شراب پیتا ہے، نہ چپکے سے بانس کی باری میں پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ شراب کی بھٹی میں جا کے چھپ کے پیتا ہے، اپنے گھر میں شراب کی بوتل سجا کے نہیں رکھتا ہے۔ سود کھانے کے لیے وہ کچہری اور دربار جو 50-100 سال پہلے لوگ لگاتے تھے، آج وہ دربار کسی گاؤں میں نہیں لگتا ہے۔ چوری چھپے سود کھاتے ہیں لوگ، مگر جو سود کا دربار نہیں لگتا ہے، شراب کا دربار نہیں لگتا ہے، زناکاری چوری چھپے ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اوپن ہمارے گاؤں سماج میں 2-4 گھر ایسی نہیں ہے جو تباہی بن کر کے وہ دکان کھول کے بیٹھی ہے اور گاؤں کے لوگ گراہک بن کے اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ احسان کس کا ہے؟ احسان اسی کا جس کو آپ کہتے ہیں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرا کوئی وقار نہیں ہے، تو 5000 روپے مہینہ کماتا ہے، تیرا کوئی ویلو نہیں ہے۔ اسی علماء کا روب و دبدبہ ہے کہ جمعہ کا خطاب ان کا، سیرت کے جلسوں کا خطاب، یہ ٹوکنے والا ان کا احسان ہے جو ہمیں ٹوک کر ہماری طبیعت کے خلاف بول کر ہمیں گناہوں سے نفرت دلاتا ہے، ہمیں نیکیوں کا ماحول دیتا ہے۔ یہ تقریروں کی حیبت ہے کہ شرابی ہے مگر اوپن شرابی نہیں ہے، زناکار ہے مگر اوپن زنا کی دکان کھول کے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، جس طرح کافروں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، کرسچنوں کے یہاں، سکھوں کے یہاں اوپن مجرم گنہگار جواری شرابی پاپی اس طرح مسلم سماج میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارا یہ ٹوکنے والا موجود ہے جو ہمیں ٹوک کر سیکھا کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، سرزمین ثانی دولہ تلنگانہ، علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
वाह 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 वाह। आप चाहे आलिमों को जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब समझ के बेटी दें न दें, आलिमों को गरीब समझ के आप बेटी न दें, ठीक है, मत दीजिए आप। आलिमों को गरीब समझ के अपना दामाद मत बनाइए आप। इनको गरीब समझ के शादी ब्याह, जहाँ पौश टाइप के लोग आपके घर में पहुंचे हैं, विधायक, सांसद, डीएम, दारोगा, एसपी साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, सीओ, वहां इस मौलवी साहब को मत ले जाए, क्योंकि आपकी शान के खिलाफ बात है। ये मौलवी साहब लोग हैं, चुपके से आए, फातिहा पढ़ के चले जाए। माँ मर गई, चुपके से आए, एक कोने में 40 दिन सूरह बकरा पढ़ के वो चले जाए, मगर अपने ग्रैंड फ्रेंड सर्किल में इसको नहीं आने दें। आप कुछ भी कहें, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा, आज जो दीन जिंदा है समाज में, एहसान इन मौलवियों का है। ये आज जलसा हो रहा है, क्या किसी डीएम, क्या किसी डॉक्टर ने करवाया, क्या किसी इंजीनियर ने करवाया, क्या गांव के किसी जमींदार ने पहल करके कि भाई गांव में 2-4 बार जलसा करवाओ, ताकि 1 दर्जन उलमा आएंगे तो कम से कम साल भर रहमतों की बारिश होती रहे। जहां 10-20 गांव के लोग मुसलमान जमा होंगे, 50-100, वहां जरूर कोई अल्लाह का वली होगा, इसी के बहाने जो अजाब आने वाला होगा, इन नेक लोगों के कदमों की बरकत से अल्लाह उस अजाब को टाल देगा। मैंने सुना है कि एक नेक जहां रहते हैं, आसपास के 100 लोग अमन अमान में रहते हैं। कौन है जो आगे बढ़ के करवाता है? मदरसा चलाते हैं ये गरीब आलिम, जो मदरसे की धमक है, जो आज प्रधानमंत्री हिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सीएम इन मदरसों को देख के घबरा रहा है। उसको यूनिवर्सिटी से डर नहीं लगता, उसको कॉलेज से डर नहीं लगता, जबकि यूनिवर्सिटीज है, वहां हजारों कॉलेजेस है, लाखों प्राइमरी स्कूल इंडिया में मौजूद है, उन स्कूलों से डर नहीं लगता, मगर मदरसे से डर लगता है। वो मदरसा जो गरीबों के पैसे से चलता हो, जहाँ भीख मांग के गरीबों के बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम होता हो, जहाँ आतंकवादी पैदा नहीं होता है, जहाँ कहा जाता है कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, गीबत करना हराम है, बदनिगाही हराम है, दूसरों के माल पे नाजायज कब्जा करना हराम है। यानी जेंटिलिटी का पैगाम मदरसे में नशर होता है, ह्यूमैनिटी का पैगाम मदरसे से नशर होता है, शाइनेस का पैगाम मदरसे से नशर होता है, जहां मॉरलिटी का पैगाम मदरसे से नशर होता है, आदमियत का, शराफत का, पाकीज़गी का, तर्के गुनाह का, तकवा का पैगाम मदरसे से नशर होता है। अगर कभी यकीन नहीं आए, मदरसा में जाके 5 घंटे या 2 घंटे रह के देख लें कि देखें कि मौलाना बच्चे को क्या पढ़ाता है, दरसे रुहानी में क्या देता है, और पहले दिन जो मदरसा अली का बच्चा पढ़ता है वो क्या पढ़ता है। मैंने बड़े बड़े जलसे में कहा कि अगर तुम लोगों ने आतंकवादी का अड्डा कहा है, क्या सुन सुन के बोला है कि जबरदस्ती बोला है कि दुश्मनी में बोला है? कभी तुम 2 घंटा मदरसे में जाके देख, गृह मंत्री भी बैठ जाए, सीएम भी वहां चले जाए, अगर तौफीक दे तो हमारे पीएम भी मदरसा चले जाए, 1 घंटा चुपके से ड्रेस बदल कर वो जाए, या अपना जासूस को भेज दें और जासूस को भेज करके बता दें कि 2 घंटे तक मदरसे में जो पढ़ाई हुई बच्चों को बताया गया, वो क्या बताया गया? वो बताया गया है, उसको बताया जाता है कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है, रोजा रखना है, बड़ों का एहतराम करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है। यानी सिर्फ शराफत का पैगाम। कभी नहीं कोई मौलाना बोलता है कि यहाँ से निकलना किसी काफिर को मार देना, यहाँ से निकलना किसी काफिर की गर्दन मार देना, यहाँ से निकलना उसकी जमीन पे कब्जा कर लेना, यहाँ से निकलना बम फाड़ देना। वो जो फाड़ता है फाड़ता है, लेकिन मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कैसे कहा? क्या तुमने जाके जांचा? तुमने परखा? एक दिन अगर 2 घंटा मदरसे में रहा तो अगर दिल तेरा जिंदा है तो वहां से लौटने के बाद तेरा नजरिया बदल जाएगा, तो यही बोलेगा। आज जो स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे धमाका करते हैं, वो बच्चे शराब पीते हैं, वो बच्चे सुसाइड करते हैं, वो बच्चे जहर खा के मरते हैं, वो बच्चे डीएम बनने के बाद समाज और मुल्क की मईशत को कमजोर करते हैं, वो खून चूसते हैं, रिश्वत लेते हैं। एक छोटा सा पुलिस वाला वो भी 10 रुपए की रिश्वत लेता है, डीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ लाखों लाख की रिश्वत लेता है, जो मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा है, मिनिस्ट्री की कुर्सी पे, वो मिनिस्टर भी करोड़ों रिश्वत में लेता है। तो तेरा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ रिश्वत हो, तेरा जेएनयू का पढ़ा हुआ रिश्वत हो, तेरा साथ मिलिया का पढ़ा हुआ रिश्वत हो, तेरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ रिश्वत हो, हराम हो। ये 135 आदमी जो मोरबी के पुल गिरने से मर गए, उसका जिम्मेदार कौन था? वो औरेवा ग्रुप का जो डायरेक्टर, वो अब आज
अपने आप को सरेंडर किया, और को उसका जिम्मेदार है। चंद सिक्के कमाने के लिए 135 आदमी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि फुल डैमेज था, मगर लोगों की जान पे खेल के पैसा कमाना चाहा। वो कौन था? जाहिल किस्म के लोग थे। नहीं नहीं, ये मदरसे का मौलवी जिस दिन हिंदुस्तान में बढ़ता चला गया, मदरसे की तालीम फरोग पाती चली गई, मदरसे को प्रमोट किया गया, तो डकैतों की तादाद घटेगी, नमाजी की तादाद बढ़ जाएगी, शरीफों की तादाद बढ़ जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान से गुंडागर्दी खत्म करना है तो मदरसों को प्रमोट करना होगा, प्रोत्साहन देना होगा, इसकी तालीम को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि यहाँ से डकैत नहीं पैदा होते हैं, यहाँ से शराबी नहीं पैदा होते हैं, यहाँ से सेनाकार भी पैदा होते हैं, यहाँ से भोला भाला पैदा होता है, नमाजी पैदा होता है, शरीफ पैदा होता है, एक दूसरे को सम्मान देने वाला पैदा होता है। जब तक मदरसा डैमेज होता रहेगा, स्कूल कॉलेज से डकैत पैदा होते रहेंगे, और जब से मदरसा को इज्जत मिलती जाएगी, देहात से लेकर शहर तक शरीफों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि वो लोग बगैर देखे हुए दुश्मनी और तासुब का चश्मा लगा के फैसला लेते हैं। अब ऐसे में आपको गौर करना है कि वो आलिम जिसको गवर्नमेंट भी आतंकवादी कहे, और आप भी जिनको बेसहारा छोड़ दें, लेकिन ये कितने काम के आदमी हैं कि आपके बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं। आपकी मस्जिदों में अगर अजान और नमाज़ बाजमात हो रही है, या इन्हीं उलमा कराम का एहसास है। यह जलसा हुआ, पूरे इलाके में नाम हुआ, खाड़ी में जलसा हो रहा, गरीब नवाज उर्स मनाया जा रहा है। इसके आगे बढ़ने वाले कौन हैं? कौन भीख मांग करके डेकोरेशन और लाइट और उलमा को बुला करके इंतजाम करने वाले कौन हैं? वही गरीब मौलवी हैं, जिससे आपके गांव का मान सम्मान ऊंचा होता है। तो उलमा नफरत की चीज नहीं, ये मोहब्बत की चीज है। इससे महफिले निकाह आबाद है, इससे मस्जिदें आबाद है, इससे मदरसा आबाद है, इससे जलसा आबाद है, इससे हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी आबाद है। हम के सर से लेकर पांव तक करोड़ों गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है, मगर ये कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले जब दुआ करते हैं, मुमकिन है कि मेरा गांव आग में जलकर राख हो जाता, लेकिन इन नेक लोगों के कदम पा जाते हैं जिनकी दुआओं से जमीन पे उतरने वाले अजाब को अल्लाह टाल देता है, अल्लाह टाल देता है। इसलिए नफरत की चीज नहीं, मोहब्बत की चीज है। मोहब्बत करें। और मैं आपसे कहा था कि सुकून नहीं है जिंदगी में, चाहे आप अरबों खरबों कमा लें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात वो हो गई कि यहाँ गुर्बत के बावजूद बेदीनी है, और दूसरी बात ये सुन लें कि चाहे जितना हाई फाई कर ले आओ, जमीन खरीदे, मकान बनाने, लेकिन आपने रिजल्ट क्या देखा? रिजल्ट यही देखा कि गांव में कोई सुकून की जिंदगी नहीं गुजार रहा है। 1000 बीघा जमीन वाला वो भी अफसोस करके मर जाता है, और जो मजदूर है मजदूरी करते करते वो भी मर जाता है। ये तो गांव देहात का जो तजर्बा हमारा और आपका है, वो भी मैंने अपने गांव के जमींदारों को देखा है, जो ठीक से कपड़ा तक नहीं पहना, ठीक से मुश्क और कस्तूरी तक नहीं लगाया, जिन्होंने ठीक से जिंदगी में नहीं सिर्फ खेती उपजाना है, दूसरी खेती लगाना है, उसी को बेच करके कपड़ा पहन के मकान बना के शाम दिखलाना है। और क्या है? सारा कैरेक्टर काफिरों का है। शादी ब्याह में काफिराना कल्चर, सर से लेके पांव तक लिबास और चेहरे मोहरे में काफिराना कल्चर। और घर में 10 कमरे हैं तो 10 कमरों में LED टीवी, और मर्द और औरत एक साथ मिल करके साफ और नंगा नाच देखें, कॉमेडी देखें, कहकहा देखें, सब कुछ करें। ये सब है छोटी सी दौलत मंदों की कहानी, जिसके हाथ दीन नाम की कोई चीज नहीं है। जहां सिर्फ दौलत थोड़ी सी बढ़ी तो बेदीनी आ गई, कहकहा आ गया, कॉमेडी आ गई। कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, और आप देख ले उस आयत करीमा में जहन्नमियों की पहचान और जन्नतियों की पहचान क्या कहा। हम लोग आमतौर पर दूसरे को कह देते हैं कि साहब ये हज को जा रहा है, 700 चुबा खा के दिल्ली हज को चले। कोई साहब जलसा करवाता, अरे नाम नमो दिखाने के लिए कर रहा है। कोई साहब नमाज पढ़ रहा, अच्छा देखेंगे कब तक चलता है। यानी सिर्फ तंज है, सिर्फ तंज, सिर्फ दूसरों की हिजोगरी, दूसरों की हुटी, दूसरों का मजाक उड़ाना, यह है बेवकूफों की पहचान, और यह है गंवारों की पहचान। सिर्फ हुटी प्रमोट करना, हौसला अफजाई कर, नमाज पढ़ते माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें दे, मरते दम तक आपको नमाजी बना कर रखे, अल्लाह ताला मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे। नहीं सुने किसी से, अच्छा देखेंगे कब तक चल रहा है। कोई अपने घर में महफिल मिलाद महीने में करवा, या हर जुमरात को करवाए। मैंने अपने नाना को देखा कि बुढ़ापे में
مرتے دم تک ہر جمعرات کے دن محفل میلاد کرواتے تھے اور سرکار دو جہاں کی محفل میلاد پڑھتے تھے اور سلام پڑھتے اور جو کچھ بھی تبرک ہوتا بچوں میں تقسیم کر دیتے. ایک دن کرنا آسان ہے, کنٹینیو ہر جمعرات کو کرنا یہ مشکل کام ہے. جو کام سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں آج تک ہر جمعرات کا ہو رہا ہے, اور جو کام مدینہ شریف میں 80-90 سال سے اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں رہتے تھے وہ ساری زندگی کرتے تھے. وہ تو جمعرات نہیں, ہر دن عشاء کے بعد میلاد کرتے تھے اور جمعرات کے دن بڑی محفل کرتے تھے. حج کے موسم میں اور بڑی محفل کرتے تھے. جتنے زائرین آتے دنیا بھر سے حجاج کرام جو ان سے ملنے جاتے